بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے، رمضان المحترم کے آخری عشرے کے کچھ دنوں کے لمحے بڑی باسعادت ذکر الہی، ذکر قرآن اور ذکر صاحب قرآن میں گزرنے کی اور گزارنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کی عظیم الشان نشست قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے یہ خصوصی توحیدی عنوان کے تحت ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے ہمیں جو خود کی پہچان دی، ارشاد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی جس طرح سے دنیا میں جتنے بھی خالق ہونے کا ایک عنوان مجازی طور پر رکھتے ہیں، میں حقیقی طور پر سب میں احسن ہوں۔ احسن الخالقین رب کی شان ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ نے جس نبی کے دامن سے وابستہ ہونے کا حکم دیا ہے، اس نبی کی شان فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرا حبیب سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ احسن الخالقین کا حبیب بھی احسن المخلوقین ہے، تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک کو آپ جب دیکھیں تو کلام الہی ہونے کی حیثیت سے توریت، زبور، انجیل، صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم اور دیگر انبیاء کرام کی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں، وہ تمام صحیفے کلام الہی کی شان ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان میں سب سے احسن شان قرآن پاک رکھتا ہے۔ احسن الکتب قرآن پاک ہے۔ ایسے ہی آپ امت کا اعزازی پیمانہ جب دیکھیں گے آپ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام کی امت آئی، تمام بالخصوص بلیور امت کو بھی آپ لیں تو تمام امت محض ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے کنتم خیر امتن کا تاج پہنایا۔ ارشاد ہوتا ہے تم بہترین امت ہو۔ کن میں بہترین ہو؟ وہ تمام امتوں میں جو بلیور ہونے کے باوجود تمہاری شان نہیں رکھتے ہیں۔ یہ بات دھیان میں رکھیے کہ یہ جو کمپیئر کیا گیا ہے امت محمدیہ کا، یہ کافروں وغیرہ سے نہیں، اچھوں سے یہ کیا گیا ہے کمپریزن، یعنی تمام اچھے ایک طرف، تمام اچھے اور بلیور اور ماننے والی امت ایک طرف، اور میرے حبیب کی ماننے والی امت ایک طرف ہے۔ ماننے والی امتیوں میں اعزاز آپ کو ہم کو حاصل ہے، الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے منفرد، ممتاز اور انفرادی شان والا رکھا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تڑپیں اور اللہ کرم نہ کرے، آپ مچلیں اللہ کرم نہ کرے۔ میں آج کی گفتگو کچھ حالات کے میں آپ کے جسموں پر دیکھنے کی وجہ سے موڑنا چاہتا ہوں۔ قرآن اور صاحب قرآن سے جڑیے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کا نتیجہ دینا یہ اللہ پاک کا ذمہ کرم ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ آپ کو وہ دے گا جو آپ وہم و گمان میں بھی نہیں رکھتے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ پاک نے بہت پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ سنو، تم میرے پاس تقویٰ تو لاؤ، میرے پاس پرہیزگاری تو لاؤ،
میرے پاس اطاعت لاؤ، میرے پاس جذبہ اتباع لاؤ، میرے پاس بلیونگ کا جذبہ لاؤ، میرے پاس اٹریکشن لاؤ، میرے پاس انابت لاؤ، میرے پاس توجہ لاؤ، میرے پاس رجوع اللہ لاؤ، میرے پاس انابت اللہ لاؤ، اللہ اور رسول کی اطاعت کا جو جذبہ ہے وہ ریئل میں لاؤ، میں تمہارے لیے راستہ ہموار کروں گا، یجعل لہ مخرجا، میں تمہارے لیے راستہ نکالوں گا اور تمہیں وہاں سے عطا کروں گا۔ یہاں کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، رزق صرف کھانے کو نہیں کہتے ہیں، رزق عربی میں نوازش کو کہتے ہیں، عطا کو کہتے ہیں، اسی لیے آپ کہتے ہیں یا رزاق، اے عطا کرنے والے۔ آپ ایک دعا پڑھتے ہوں گے اللہم ارزقنا العلم، تو علم کھانے کی چیز تھوڑی ہے، اے اللہ ہمیں علم عطا فرما۔ وہاں پر بھی اللہ پاک فرما یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ افسوس بات یہ ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں جانے نہیں کہا گیا ہے، رب نے جہاں جانے کہا تھا وہاں جائیے، اللہ ایسا عطا کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا گناہ کل بھی ہوتے تھے، موب لنچنگ کل بھی ہوتی تھی، غلطیاں کل بھی ہوتی تھی، پریشانیاں کل بھی ہوتی تھی، ظلم و جبر کل بھی ہوتے تھے، بس سوشل میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے چھپ جاتا تھا، آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ابھر رہا ہے۔ میں آپ کے دل کو مؤلف کرنا چاہتا ہوں، تالیف قلبی کا ایک عنوان دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں تم ایک بھی نبی کے ماننے والے بچو گے تو اس ایک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کو بچائے گا، یہ شان ہے تمہاری۔ اس لیے ابھی تو تم بہت ہو، ابھی غمزدہ مت ہونا، ابھی پریشان مت ہونا، ابھی غمگین مت ہونا۔ تمہیں 1400 سال پہلے ہی یہ مدعا دے دیا گیا تھا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ حبیب کے ماننے والوں غمزدہ مت ہو، پریشان مت ہو، کمتر مت سمجھو، ایمان کو گھٹ رکھو، کامیابی تمہارے سروں پر میں رکھوں گا۔ یہ ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے کرم میں لے لیا ہے۔ آپ وہ نہ دیکھیے جو آپ کا کام نہیں ہے، آپ وہ کیجئے جو آپ کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے بلیو کرنا، آپ کا کام ہے قرآن سے جڑنا، آپ کا کام ہے صاحب قرآن سے جڑنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بھی ذمہ داری آپ کی۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کیجئے، رب کا جو کام ہے وہ کیا ہے، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ آپ کا کام تھا دعا کرنا، آپ کا کام تھا نماز پڑھنا، اب دعا کی قبولیت کا انتظار کرنا آپ کا کام نہیں ہے، دعا قبول کرنا اس کا کام ہے، ظاہر کرنا اس کی شان ہے، نہیں ظاہر کرے وہ بھی اس کی شان ہے۔ وہ اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے، اور عدل تو ہم چاہتے ہی نہیں، ورنہ اس کے عدل میں اگر آ جائیں تو آپ سوچیں، قرآن کہتا ہے لو یاخذ اللہ بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تمہاری کرتوتوں کی بنیاد پر اگر وہ پڑھنا چاہے تو ریتنے والا کوئی جانور نظر نہ آئے زمین پر، وہ اس کی شان ہے، اس لیے وہ اپنے فضل سے آپ کو ہم سب کو بخش دے، بڑی بات ہے۔ مسلمانوں جو کہا گیا ہے وہ آپ کام کرو، قرآن کی اطاعت کرو، قرآن سے جڑو، نبی سے جڑو، اور صحابہ اسی بنیاد پر کامیاب ہوئے کہ انہوں نے بس قرآن سے اور صاحب قرآن سے اور جو جو کہا گیا اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس سے جڑے رہے، کامیابی فرشتوں کی شکل میں اللہ پاک نے دی ہے۔ اس لیے وہ انتظار نہیں کیے۔ بتائیے کبھی فرشتوں کبھی صحابہ کرام نے دعا کی تھی کہ اللہ فرشتہ اتار دے؟ نہیں، رب نے مصطفیٰ سے وعدہ کیا تھا، رب نے مصطفیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ میدان میں صحابہ ہے، مدد فرشتوں کے ذریعے ہو رہی ہے، دعا نہیں کیا تھا صحابہ نے، کام کیا تھا صحابہ نے، مدد اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ یہی میں کہنے جا رہا ہوں آج اس چھوٹی سی گفتگو میں کہ آپ ہم سب قرآن سے جڑے رہیں، صاحب قرآن سے جڑے رہیں، یہ ربط بالقرآن اور ربط بصاحب القرآن یہ اتنا مستحکم ہو جائے کہ آپ کی ڈیوٹی یہ تھی اور رب العالمین اپنا کرم پھر نازل کرے، کیونکہ رب عطا کرنے والا ہے، رب دینے والا ہے، رب ہی دینے والا ہے، رب ہی نازل کرنے والا ہے، رب ہی عطا کرنے والا ہے، رب ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہم ظالم کو ہدایت نہیں دیں گے، تو آپ ظالموں کی طرف دیکھ کیوں رہے ہیں؟ اس کو تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم ظالم کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا مظلوم کو ہدایت بھی دیں گے اور مظلوم کو کامیاب
कामयाबी भी देंगे। सूरह आप पारा नंबर 10 की आयत करीमा का मुलाजा करें, अल्लाह पाक फरमाता है, बड़ी एकदम नीड ऑफ दी ओवर वाली गुफ्तगू हो रही है, जरा देखिएगा, ऐसे ही आप खूबसूरत रहे, बड़ी अहम बात आगे अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वालो, जब तुम्हें किसी अपोजिशन से मुठभेड़ हो, जब किसी जमात से मुकाबला हो, मद्दे मुकाबिल से तुम्हारी मुलाकात हो जाए, लड़ाई वगैरह का उन्वान हो और अपोजिशन का एक उन्वान आ जाए, तो ऐसे वक्त में आपका क्या काम होना चाहिए कि जाकर के घर में आप तलवार को ढूंढे। जरा सा जुमले पे गौर कीजिएगा, इस्लाम तलवार से नहीं मुसलमानों, जिक्र इलाही से फैला है। इस्लाम कुरान और साहिब कुरान के ताल्लुक मुस्तहकम से फैला है। इस्लाम की खूबसूरती को समझिए, कुरान कहता है, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बतू, जब मुलाकात हो किसी जमात से जो अपोजिशन हो, फस्बतु, सबसे पहले कदम को साबित रखो। अपनी जबान से कोई ऐसे जुमले ना निकालो जो आज आप देख रहे हैं अपने माबूदों का गलत इस्तेमाल करके मॉबलिंचिंग करने वाली कौमों को, आप ऐसा न करना। फस्बतु, साबित कदम रहना, ईमान में तजल्जुल ना आने पाए, अखलाक में गिरावट ना आने पाए, किरदार में कमजोरी ना आने पाए। और उसके बाद क्या करना, फज़कुरुल्लाह, अल्लाह के जिक्र से गाफिल भी ना होना। ये अल्लाह, ये जिस्मानी ताकत, ये बख्ती है, ये ताकत से हम सामने वाले को मगलूब नहीं करेंगे, बस तेरा करम होगा तब ही हम करेंगे, तेरा फजल होगा तब ही हम। इसीलिए रब कहता है, फज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तुम मुझे उस आलम में भी खूब याद करोगे, तब फलाह तुम्हें हम अता करेंगे। ये देखिए आप, मखलूक तो अपोजिशन की भी है, लेकिन अल्लाह पाक ने दोनों को एकदम पानी मतलब साफ कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी। कौन कामयाब होगा, कौन नाकाम होगा। हमारे अंदर बड़ी कमी है इस बात की कि हम सुबह में नमाज नहीं पढ़ते, ध्यान दीजिएगा, और हम पेपर को देखते हैं और देखते ये हैं कि मुसलमानों पर ये हुआ, वो हुआ, जुल्म होगा वगैरह वगैरह। उसी वक्त हम बद्दुआओं की बौछार लगा देते हैं। मुसलमानों, ये जबान में कब तासीर होगी, ये जबान में तासीर कब होगी? ये जो आप बोल रहे हैं ये ईमानी हरारत है, लेकिन आपने जो तर्क सलात किया है ये ईमानी हरारत नहीं है। ये बात को आपको महसूस करना होगा। आप अपने करप्शन को दूर कीजिए, आप अपनी इताअत को कामिल कीजिए, जज्बे इत्तिबाए कुरान को और जज्बे इत्तिबाए साहिब कुरान को कंप्लीट कीजिए। खुदा की कसम, जबान हिलाएंगे भी नहीं, वो देख रहा है। वहुवा या अलीमुन बिज़ाति सुदूर यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, वो तो आंख के पलक को भी, झपकने को भी, खयानत को भी और दिलों के राज को भी जानता है। आप उसको भी वो कबूल कर रहा है जिनके पास जबान नहीं है, उसकी भी बातें वो कबूल कर रहा है जिनके पास बोली नहीं है। इसलिए कबूलियत का इंतजार आप ना करो, अमल की दुनिया में आप आओ, कुरान से आप जुड़ो, साहिब कुरान से ताल्लुक मुस्तहकम करो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रब करम करे वो उसकी जिम्मेदारी है। ये काम आपका नहीं। ये दोनों काम को, बैलेंस को समझिए। हम दुआ कर रहे हैं, कबूल नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में दुआ आ रही है, कबूल नहीं हो रही है। अरे वो सरजमीन वो है जिस सरजमीन पर कौमे जबाबिरा ने जुल्म ढाया है, और उस वक्त भी अर्ज़ मुक़द्दस ही कहा गया था फलस्तीन को, या कौमी खुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल लती कतबल्लाह। अर्ज़ मुक़द्दस कुरान में उस जमीन को कहा गया है जिसमें कौमे जबाबिरा है, और मूसा की उस कौम, उन लोगों ने कहा भी था आप अपने रब के साथ जाइए, उसी सरजमीन पर कहा गया था। स्ट्रॉन्गनेस समझिए उम्मत मोहम्मदिया का। तुम दुनिया के किसी कोने में रहो, कामिल अगर रहोगे आप कुरान और साहिब कुरान के ताल्लुक में मुस्तहकम रहोगे, तो वो जगह नहीं देखता है, वो बस आपके लम्हे देखेगा, वो आपको देखेगा। आप यहाँ तन्हाई में बोलोगे, यकीनन दुआ वहां कबूल का इजहार फरमाएगा अल्लाह ताला। कौन थे हजरत उवैस करनी? कर्न की सरजमीन पर थे, और कर्न की सरजमीन के बारे में ये नहीं है कि वहां नमाज पढ़ो तो 50 सवाब मिलेगा या 1 लाख का सवाब मिलेगा, लेकिन खुदा की कसम उस 1 लाख वाली सरजमीन पर पढ़ने वाले, रहने वाले उमर इब्न खत्ताब को और मौलाए कायनात को उस उवैस करनी के पास भेजा जा रहा है कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करवाओ जाकर। ये जुमला बता रहा है कि दुआओं की तासीर के लिए बिलीव शर्त है, स्ट्रॉन्गनेस शर्त है, इत्तिबा शर्त है, मुस्तफा की जानिब लो लगाना शर्त है, कुरान और साहिब कुरान से कंप्लीट अपना ताल्लुक मुस्तहकम करना शर्त है। वो कम नहीं थे, लेकिन उवैस करनी की अजमत को बताना मकसूद है। ए उम्मत मोहम्मदिया, आप भारत की सरजमीन पर, हैदराबाद के खित्तों में किसी जगह पर भी रहो, अल्लाह ताला जगह से पाक है, वो कबूल करने वाला है। आप सोचो तो सही,
आप जरा तवज्जो सुनो, अल्लाह पाक ने बहुत पहले ही कह दिया था सूरह काफ में कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। जरा आप इस बात को समझे हैं, इस बात को बस इस एतबार से आपने समझा है अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है, लेकिन इसको इस एंगल से जरा समझिए कि अल्लाह आपसे करीब है, क्या आप अल्लाह से करीब हैं? अल्लाह पाक ने तो कहा कि मैं तुमसे करीब हूं, लेकिन ये बंदे तुम मुझसे करीब हो? जरा इस कुर्बत को समझिए, अल्लाह कैसे करीब है, मदद के जरिए करीब है, नुसरत के जरिए करीब है, औन के जरिए करीब है, करम के जरिए करीब है, लेकिन क्या आप अमल के जरिए करीब है, किरदार के जरिए करीब है, अखलाक के जरिए करीब है, ताल्लुक बिल कुरान के जरिए करीब है? वहां की कुर्बत करम की है, तो यहाँ की कुर्बत करम लेने जैसा तो होना चाहिए ना। ये है उन्वान। तो कुरान और साहिब कुरान का आज ये खुसूसी नशिस्त आपको यही पैगाम दावत दे रहा है। जुम्मतुल विदा इसलिए नहीं है कि आप जो है अल्फाज के एतबार से रमजान को जुदा कर दीजिए, फील कीजिए, आप महसूस कीजिए आप कि 27 दिन तक हमने क्या खोया है, क्या हमने नहीं किया है, क्या हमने खोया है, ये आप महसूस कीजिए। फिर रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह फिर हमें रमजान अता कर, ताकि हमने जो खोया है उसे हम उसकी भरपाई कर सके। आपने क्या पाया है, ये उम्मत मोहम्मदिया का स्ट्रांगनेस नहीं है, वरना सहाबे किराम को तो अल्लाह पाक ने, जरा तवज्जो सुने, कुरान पाक के जरिए से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वाले वो सहाबे किराम और कुरान से मुकम्मल जुड़ने वाले वो सहाबे किराम की अजमत का अंदाजा लगाइए। कुरान कहता है इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, सिर्फ साहिबे कुरान की बारगाह में अपने आवाज को पस्त रखने वाले सहाबे किराम की शान सुनिए, आवाज को पस्त रखने वाले। बताइए वो मुस्तफा की आवाज पर कितना अमल करते होंगे? अपनी आवाज को बारगाह रिसालत में पस्त रखना, ये अल्लाह पाक ने ढंग सिखाया था, साहिब कुरान की बारगाह का अदब मुस्तफा सिखाया था कि इस तरह करना कि अपनी आवाज को बुलंद न करना, बुलंद करोगे तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। साहिब किराम, हालांकि अब अच्छा एक और बात यहां पर समझिए, बड़ी अहम बात आ गई है, अहले मोहब्बत है आप लोग, इसलिए इसको मोहब्बत के आईने में समझिए कि अल्लाह पाक ने क्या कहा था, आवाज को बुलंद मत करना, ये कहा था ना। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा था कि जबान में कंकड़ी रख लेना। लेकिन आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का मुताला कीजिए, जब ये आयत उतरी ना तो हजरत उमर इब्न खत्ताब, अबू बकर खास तौर से इन्हीं दोनों की शान में उतरी है कि वो बारगाह रिसालत में जब तशरीफ ले जाते या रहने का उन्वान होता तो पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ी रख लेते। ये तो हुक्म ही नहीं था ना। उन लोगों से भी बार बार आप कहिए जो दलाइल की दुनिया में सिर्फ किताब में कहां है कहां है कहां है, समझे वो ताल्लुक रिसालत को समझे, नबी को खुश करना, जाविया जो भी हो सब एक्सेप्टेड है अल्लाह की बारगाह में, सब अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। हुक्म खुदा नहीं था कि कंकड़ी रखो, लेकिन सहाबी ने कंकड़ी रखकर बताया कि ये हुक्म खुदा से रिलेटेड है, तो फिर मकसद खुदा है अदब मुस्तफा, मकसद खुदा है अदब मुस्तफा, और मैं ये अदब मुस्तफा में कर रहा हूं। इसलिए साहिब कुरान के अदब में सुनिए, अल्लाह पाक ने दूसरी आयत उतार दी, इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, कि ये जो साहिब कुरान की बारगाह में, रसूल पाक की बारगाह में अपनी आवाजों को जो पस्त किए हुए हैं ना, अब इनकी शान सुनो, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम से पहले सुनिए, उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। बड़ी खूबसूरत बात आ गई है। बताइए रोजे का मकसद क्या था? रोजे का मकसद लअल्लकुम तत्तक़ून। पूरे रमजान सुने होंगे आप, ये ईमान वाले तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं वगैरह वगैरह, है ना, इस उम्मीद पर कि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजे का मकसद ये था, इस उम्मीद पर, यानी तुमको रोजा इसलिए, अमली दुनिया इसलिए दी गई ताकि तुम मुत्तकी बनो। और साहिब कुरान से ताल्लुक का समरा सुनिए, अगर आप मुस्तहकम है मुस्तफा की बारगाह में अदब एहतराम और ताज़ीम की बुनियाद पर नबी से घट है आप, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि रोजा तो मैंने अमल दिया था ना, मुत्तकी बनो। पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं भी है, हो सकता है रोजे में कंप्लीट और इनकम्प्लीट का अनुमान हो, लेकिन जो अदब मुस्तफा करेगा वो साहिब कुरान से जुड़ेगा और पॉजिटिव रहेगा, उनको मैं मुत्तकी बना कर छोड़ूंगा। उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, उनके दिलों को। अच्छा एक और बात है यहां पर, एक है मुत्तकी बनाना, मुत्तकी बनाना, तो मुत्तकी बनाना ये नाखून से लेकर सर के बाल तक भी तकवा का एक उन्वान है कि आप हाथ से मुत्तकी बन जाएं, पांव से मुत्तकी बन जाएं, लेकिन मेन पार्ट ऑफ बॉडी क्या है? दिल है।
मेन पार्ट जो है ये दिल है। नबी फरमाते हैं सुनो, जिस्म में एक गोश्त का लुथड़ा है कि अगर वो खराब हो गया तो सारा जिस्म खराब हो गया। ठीक है, सारा जिस्म खराब हो गया। जरा समझिए, यानी सारा जिस्म अगर मुत्तकी वाला भी है और दिल मुत्तकी वाला नहीं है तो समझिए गया मुत्तकी वाला भी जिस्म। वाह 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 वाह, ये रोजा आपने रखा है, मुत्तकी भी आप बन गए हैं। लेकिन जरा समझिए साहिब कुरान और कुरान से ताल्लुक का जो उन्वान है, मुस्तफा जाने रहमत से ताल्लुक रखने वाले, ये नाखून से लेकर सर के बाल तक का तकवा नहीं, मेन पार्ट ऑफ बॉडी जो दिल है उसका तकवा तुम्हें अल्लाह ताला अता फरमाएगा। दरे मुस्तफा का अदब करने वाले, साहिब कुरान के लिए पॉजिटिव रहने वाले, तो मैं दिलों का तकवा अता करूंगा। ये सबसे पहला, खुदा की कसम अगर ये किसी को मिल जाता तो वो सहाबा और अहले बैत के बाद अगर वलायत की सबसे बड़ी क्वालिटी उसको हासिल ना हो तो किसी को हासिल नहीं हो सकती। दिल का तकवा जिनको मिल जाए वो सबसे बड़ा वली है सहाबा और अहले बैत के बाद, क्योंकि उनको तो हासिल है ही दिल का तकवा। मगर जरा समझिए कि एक ही चीज नहीं, दिल का तकवा मिल गया, इतना आला मुकाम मिल गया, फिर भी जाकर के अल्लाह पाक खामोश नहीं, आगे फरमाता है इम्तिहानल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। क्या बात है, उनके लिए गारंटेड बख्शिश है और इज्जत वाला अज्र है। क्या बात है, यानी मैं अज्र जब दूंगा ना तो रिस्पेक्ट भी करूंगा। मेरे नबी का अदब करने वाले, बल्कि महबूब आजम का अदब करने वाले, साहिब कुरान के लिए पॉजिटिव रहने वाले खुश हो ना मेरे दिए से, सुभान अल्लाह, खुश हो ना मेरे दिए से। आज तो आपके वलायत का एक खूबसूरत मेयार भी मिल गया। अब तक तो मैंने किताबों में लिखा था, लेकिन आपने तो अटेक्शन देखिए, जरा तवज्जो सुनिए, किताबों में लिखा था वलायत का मेयार जो है तकवा है, परहेजगारी है, लेकिन आज खुलकर कहो वलायत का सबसे आला मेयार मुस्तफा का अदब है, साहिब कुरान की ताजीम है। अगर साहिब कुरान की ताजीम आपके दिल में है तो समझ जाइए कि आपको दिलों का तकवा हासिल है, और जिनको दिलों का तकवा हासिल है दुनिया की कोई ताकत उन्हें कभी भी किसी भी तरह से गुमराह नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि डायरेक्ट अल्लाह का फजल होता है, डायरेक्ट करम होता है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ताल्लुक बिल रिसालत और ताल्लुक बि साहिबुल कुरान की बुनियाद पर, ताल्लुक बिल कुरान की बुनियाद पर वो अजमत पाए, वो अजमत पाए। जरा आप और एक और बात देखिए, आप हजरात तो 6666 आयतें कंप्लीट कुरान आपके पास है, सही है कि नहीं? आपके पास कंप्लीट कुरान आपने पाया, लेकिन कंप्लीट कुरान पाने के बावजूद हमें कंप्लीट मोमिन होने का एहसास नहीं। मैं ये जुमला बोल करके आपको इतना करीब कर रहा हूं कुरान और साहिब कुरान से कि आप समझिएगा। अभी देखिए नुज़ूल कुरान का वक्त है, ठीक है, कुरान नाजिल होने का वक्त है। 40 साल का ऐलान, 40 साल के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया। ऐलान फरमाने के बाद इकरा की 5 आयतें नाजिल हुई, सूरह इकरा की, ठीक है, 5 आयतें नाजिल हुई। सहाबे किराम में से, आप औरत में से हजरत खदीजा ने, मर्द में से अबू बकर सिद्दीक ने, आप सब जानते हैं, ये सब ईमान लाए, ठीक है, यहां तक कि 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल नाजिल होते होते मैं सबसे बड़ी बात उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा फातिमा की मां रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के 10 साल के बाद भी, बेसत के 10 साल के बाद ही आप दुनिया से तशरीफ ले गए। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50 साल की उम्र पाक थी तो 40 10 50 होते, 50 साल की उम्र पाक थी तो हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो गया ना। लेकिन क्या ये जो 10 साल नुज़ूल कुरान है ये कंप्लीट 10 साल नुज़ूल कुरान है? नहीं, अभी 13 साल और बाकी, नुज़ूल कुरान का अभी 13 साल और बाकी। पूरा नुज़ूल कुरान की जो मुद्दत है वो 23 ईयर्स है, सही है। ये 10 साल के अंदर जो है जितने भी नाजिल हुए वो कंप्लीट कुरान नाजिल नहीं हुआ, कंप्लीट आयतें 6666 नाजिल नहीं हुई। जरा समझिएगा, जब कंप्लीट नाजिल नहीं हुई तो कंप्लीट कुरान पर ईमान तो नहीं रहा, जब कंप्लीट नाजिल ही नहीं तो ईमान तो नहीं है। जरा समझिए, आप खदीजतुल कुबरा तशरीफ ले गई दुनिया से, थोड़ी देर चुप हो और इसको महसूस कीजिए, आप महसूस कीजिए हजरत खदीजतुल कुबरा का अब लेवल जरा महसूस कीजिए। पहले 2-3 हदीस, बल्कि एक हदीस पाक समझिए। खदीजतुल कुबरा वो शान रखती है कि हजरत नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पाक में है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और आकर के मेरे मुस्तफा पर हाजिर होकर अर्ज करते हैं, सिर्फ इसलिए आया हूं कि अल्लाह खदीजतुल कुबरा को सलाम भेजा है।
अल्लाह खदीजतुल कुबरा को सलाम भेजा है और एक ऐसे जन्नत की बशारत दी है जिसमें कोई चीख पुकार नहीं है, शोर शराब नहीं है। खदीजतुल कुबरा को जन्नत की बशारत, रब का सलाम डायरेक्ट। पूछिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अदब व एहतराम से, अल्लाह खदीजतुल कुबरा का ईमान कंप्लीट, कुरान तो मुकम्मल नाजिल हुआ ही नहीं। जवाब मिलेगा साहिब कुरान से ताल्लुक और निस्बत में कामलियत, ये एहसास में नुज़ूले कुरान के इनकम्प्लीट होने के बावजूद कंप्लीट बिलीवर और मोमिन की शान अता कर दी है उनको। सुभान अल्लाह, कंप्लीट बिलीवर और मोमिन की शान अता कर दी है। क्यों? जितना भी था, अब ये लफ्ज पे गौर कीजिए, जितना भी था उनके पास वो उतने में कंप्लीट ईमान था। मुसलमानों में इससे ये जहन देने जा रहा हूं कि तुम्हारे पास कंप्लीट कुरान है लेकिन तुम्हारे पास कंप्लीट मोमिन का एहसास क्यों नहीं है? तुम्हें बशारत में भी सलाम क्यों नहीं आ रही है? ख्वाब में भी सलाम क्यों नहीं आ रहे हैं? तुम्हें हकीकत की तो बात है, तुम्हें यह एहसास क्यों नहीं है कि तुम जन्नती हो? तुम्हें यह एहसास क्यों नहीं है कि तुम कामयाब हो? तुम्हें यह एहसास क्यों नहीं है कि काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब है? जिस रब ने वादा किया था अपने हबीब के जरिए साहिब कुरान की आयत उतार कर, सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब बिमा अशरकू, ए मेरे हबीब मोमिनों को बशारत दीजिए कि आपकी इत्तिबा करने वाले, अल्लाह रसूल के मानने वाले, ईमान वाले जो भी है, काफिरों के दिलों में ईमान वालों का रोब डालूंगा, ये मेरा वादा। अब आप बताइए, जब आपका रोब उनके दिलों में डालने का वादा रब ने किया है तो फिर आपके दिल में उनका रोब क्यों है? आपके दिल में उनका खौफ क्यों है? आज सफर में डर है, हजर में डर है, घर में रहते डर है, कहीं भी जा रहे हैं डर है, अपने टिकट से जा रहे हैं डर है, कंफर्मेशन कंप्लीट है डर है। ये खौफ क्यों है? ये ताल्लुक बिल कुरान और ताल्लुक बिसाहिबुल कुरान का इनकम्प्लीट उन्वान है मेरे प्यारे। इसलिए आज से एक इनकलाबी उन्वान जो अब बचे हुए जो 2 दिन है, इनमें भी पिछली बातों को ये याद कीजिए कि जो हमने खोया है, अब हम उस खोए हुए को हम लौटा तो नहीं सकते, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको हम इतना अच्छा कर देंगे कि खुदा की रहमत बहाना ढूंढ ले और अल्लाह तबारक व तआला का करम हम पर नाजिल हो जाए, फैजान हम पर नाजिल हो जाए, अता हम पर नाजिल हो जाए और साहिब कुरान की नजरे करम हो जाए। मुसलमानों, नमाज पढ़ो तुम कबूलियत का मेयार मुस्तफा जान रहमत का वसीला समझो, साहिब कुरान का वसीला समझो। ये मैं नहीं, कुरान पाक कह रहा है। सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दअाकुम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अचानक गुजर होता हजरत काब बिन लुवै के करीब से, और गुजर इस हाल में हो रहा है कि हजरत काब नमाज की हालत में है। काब को आवाज देते हैं, ए काब, आवाज देते हैं, वो ऐन नमाज में है, लेकिन हजरत काब ने लब्बैक न कहा, और जब लब्बैक न कहा नमाज में ये जरूर सोचा कि नमाज पढ़ लेता हूं, फिर जब दर रसूल पे हाजिर हो जाता हूं, फिर साहिब कुरान की बारगाह में हाजिर होता हूं। नमाज मुकम्मल किए और मुकम्मल जैसे तैसे मतलब जल्दी जल्दी मुकम्मल करने के बाद तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद अर्ज गुजार हुए, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, आपने हमें बुलाया आका। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मा मनाका अन तुजीबनी इज़ दअउतुका, ए काब, किस चीज ने तुम्हें रोका जब मैंने तुम्हें बुलाया? हालांकि नबी अपनी आंख से देख रहे थे वो नमाज पढ़ रहे थे, अपनी आंख से देखे कि वो नमाज पढ़ रहे थे, फिर भी पूछ रहे हैं किस चीज ने रोका। स्ट्रांगनेस समझिए साहिबुल कुरान के ताल्लुक को, उसका नबी अलैहिस्सलाम ने किस चीज। अच्छा, साहबी ये भी नहीं कह रहे मनशए रसालत को सबसे ज्यादा समझने वाली कौम का नाम सहाबा है, समझ रहे हैं ना? साहिब कुरान को सबसे ज्यादा समझने वाली कौम ही तो सहाबा है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब कहा तो ये नहीं कह रहे सरकार आप तो देख रहे हैं कि नमाज पढ़ रहा था, ये नहीं कह रहे आज हमारा मुरीद भी है तो ये हजरत मैं नमाज पढ़ रहा था, हाँ धड़ल्ले अंदाज में बोल रहे कि नमाज पढ़ रहा था, वो ये नहीं देख रहे किससे बात कर रहे हैं, बस चुप है। उसके बाद कहते बताओ किस चीज ने रोका? कहा उन्होंने कि नमाज में था। जैसे ही ये जुमला कहा शाबाशी मिलनी चाहिए ना, अफजलुल इबादत, अफजलुल इबादत की शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा कुरान का स्ट्रांगनेस समझिए, अपने से कुरान को न समझिए, मुस्तफा से कुरान को समझिए, साहिब कुरान से समझिए। हालांकि अकीमुस सलात कुरान में है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशा कुरान में है, बुराई से रोकती नमाज है, तमाम चीजों से रोकती नमाज है, कुरान में है, कुरान में है। अच्छा ये भी कुरान में है, हम यहूदी नहीं है कि कुछ को माने कुछ को न माने, हम कंप्लीट कुरान को मानते हैं। कुरान का तकाजा समझिए,
नबी कहते अलम तस्मा मा अंज़लल्लाहु इलैया, क्या तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ताला ने मुझ पर एक आयत नाजिल की है? तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है? कहा या रसूलल्लाह, इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दअाकुम, ए ईमान वालो, जब भी तुम्हें अल्लाह उसका रसूल बुलाए फौरन लब्बैक कहना, जब भी बुलाए। अब ये जब भी का मतलब क्या समझे? वो कह सकते थे ना, आज के तो पढ़े लिखे मुरीद भी हो तो यही कहेंगे कि अरे मैं तो ये समझाता, मैं तो ये समझाता, लेकिन नहीं, समझ का आगाज वहां से होता है जब लबे मुस्तफा निकलता है। लबे मुस्तफा से निकलने के बाद ही समझ का आगाज करते हैं सहाबा किराम। हजरत काब कहते हैं, जुमला समझना हैदराबाद के मुसलमानों, जरा खूबसूरत से समझना इस जुमला, अरबी का जुमला है लन अऊद इंशाअल्लाह। आपके हिसाब से इसका तर्जुमा करो, सहाबा की बड़ी शान है, उनके कदम की बरकत से हम सबकी बख्शिश होगी, अहले बैत अतहार की अजमतों को सलाम, उनकी बरकत से हमारी बख्शिश होगी, सही है। लेकिन आपके हिसाब से इसका तर्जुमा कर रहा हूं, लैंग्वेज के हिसाब से, आइंदा ऐसी गलती नहीं होती सरकार। सही तर्जुमा हुआ? ये तर्जुमा एकदम सही हुआ। लन अऊद इंशाअल्लाह का यही तर्जुमा है। अब दरअसल पे हाजिर हुए, आइंदा दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, आपका दोबारा ऐसा क्या करे थे? गलती करे थे नमाज पढ़ना? नहीं, नमाज पढ़ना गलती कैसे हो सकती है? लेकिन नमाज को अव्वल आखिर ज़ामिने नजात समझना यह गलती है। मुस्तफा जाने रहमत को जमानत समझना यह है शरीयत। इसलिए अमल जो तुमने पूरे रमजान रोजे रखे थे, पूरे रमजान तुमने इबादतें की है, तरावी पढ़ी है और अभी बकिया तरावी और पढ़नी है, जो भी तुमने इबादत की है, नमाज सबसे अफजल इबादत है। वो नमाज जब मुस्तफा जाने रहमत से मुकद्दम नहीं हो सकती तो कोई भी इबादत मुस्तफा जाने रहमत और साहिब कुरान से मुकद्दम नहीं हो सकती। हर इबादत की कबूलियत का राज साहिब कुरान का वसीला समझना। ए अल्लाह, रोजा मैंने रखा, साहिब कुरान के वसीले से कबूल फरमा। ए अल्लाह, रोजा, हज, ज़कात, जो कुछ भी मैंने किया। अच्छा, हज का भी जुमला आप समझिए कि आप मुज़दलिफा गए, अरफात गए, यहां तक के आपको हाजी तो कह दिया गया, लेकिन मकबूलियत का उन्वान दिया गया नहीं, मग़फ़िरत का उन्वान दिया गया नहीं। तुम आओ मिना में मकबूल, आओ मुज़दलिफा में मकबूल, आओ यहाँ मग़फ़िरत नहीं। कमाल है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जिसने मेरी कब्र को देख लिया शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, देख लिया सिर्फ, यार कब्र को देख, मंजारा कब्री वजबत शफाअत, लफ्ज पे गौर करें, जिसने कब्र को देखा शफाअत वाजिब, जिसने कब्र वाले के चेहरे को देखा होगा। सहाबा वाले बैत की शान देखे आप, ऐसे ही वो मेयार नहीं है, ऐसे ही वो बेशक ईमान और बेशक नजात नहीं है। इसलिए सहाबे किराम की अजमतों को सलाम। सहाबे किराम ने जो ताल्लुक पेश किया है, उसी ताल्लुक की बुनियाद पर उन पर करम हुआ बद्र में, उन पर करम हुआ उहद में, उन पर करम हुआ हुनैन में, उन पर करम हुआ फतह मक्का की शक्ल में। तमाम जितने भी गज़वात हैं, सब करम की सबसे बड़ी वजह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए हर हाल में तकद्दुम जो हासिल है आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में, वो साहिब कुरान के हवाले से। वसी जमात में कभी न जाना मुसलमानों, वो जमात तुम्हें सिर्फ कुरान का तर्जमा, कुरान का ट्रांसलेशन, वो भी डिक्शनरी के एतबार से कुरान में कते नहीं, ये बता साहिब कुरान का तर्ज क्या है इस आयत करीमा के हवाले से। आखिरी बात कह करके और ठोस करूं कुरान और साहिब कुरान के उन्वान, आखिरी बात, और इसको समझिएगा, जो हर जगह मैंने कहा उसमें खूबसूरत नुक्ता है। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56 के तहत, ज्यादा टाइम तो नहीं पड़ा, ये आखिरी बात कह दे रहा हूं, हाँ आखिरी बात, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56 के तहत अल्लाह सुब्हानहू फरमाता, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। ए ईमान वालो, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर दरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। बिल्कुल डिक्शनरी का तर्जमा किया मैंने, एग्जैक्ट कुरान की आयत का तर्जमा किया मैंने, इसमें कोई इधर उधर नहीं दिया मैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहू, उसके सारे फरिश्ते, युसल्लूना, भेजते हैं दरूद और भेजते रहेंगे, अलन नबी, नबी पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए, सल्लू, दरूद भेजो, अलैहि, उस नबी पर, वसल्लिमू, और सलाम भेजो, तस्लीमा, खूब खूब। यहां पर बताइए भेजने वाला कौन? अल्लाह, और साथ में कौन? फरिश्ते।
किस पर भेजा जा रहा है? नबी। और किसको कहा जा रहा है? ईमान वालों को। किस पर भेजने के लिए? नबी पर। तो भेजने वाले खुदा हो, फरिश्ते हो या ईमान वाले हो, जिस पर भेजा जा रहा है वो सिर्फ कौन है? ओनली नबी है। ये जुमला सही है, ओनली नबी है। अब मैं आयत इस तरह से पढ़ रहा हूं और आप कहेंगे नहीं सही नहीं है, लुक़मा आप दीजिएगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य व अला आलिही, सही है? नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलन नबिय्य व अला आलिही, सही है? नहीं। अलन नबी ओनली, सल्लू अलैहि ओनली, हा की ज़मीर उस पर, ओनली नबी पर, दरूद नबी पर, सलाम नबी पर, खुदा भी भेजता नबी पर, दरूद भेजता नबी पर, फरिश्ते भेजते नबी पर, और ईमान वालों को ऑर्डर भी किया गया कि नबी पर ही भेजना। अब आप बताइए, इसमें सिर्फ नबी पर भेजने की बात है ना? जब सिर्फ नबी पर भेजने की बात है तो कुरान तो कहता है नबी पर दरूद भेजो। आप ऐसा करते नहीं करते, क्यों? इसलिए कि सुनिए, ये सहाबा किराम की जमात है, वो डिक्शनरी नहीं तलाशते थे जब आयत उतरती थी तो, कि डिक्शनरी में क्या है, इस आयत का मतलब क्या है। आज तो ट्रांसलेशन बहुत नजर आएंगे आपको, ये डिक्शनरी कामूसुल जदीद है, मिसबाहुल लुगात है, ये है वो है, अपनी किताब लिख के अपना रेफरेंस दे करके अपनी डिक्शनरी, ये लिखे से मखलूक है, लेकिन कुरान का जो डिक्शनरी है वो मुस्तफा की जबान है। कुरान का जो कामूस है वो मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए जब आयत उतरती तो आयत का तर्जमा अपने से नहीं समझते, मुस्तफा जाने रहमत से पूछते, या रसूल अल्लाह आपने सलाम पढ़ना तो तशहुद में हमें सिखा दिया है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये तो हमें सिखा दिया है, लेकिन दरूद भी पढ़ने अल्लाह पाक कह रहा, सरकार हमें अल्फाज़े दरूद अता कीजिए कि हम दरूद कैसे पढ़ें। सुभान अल्लाह। अब स्याह सित्ता में इसकी तफसीर में आप देखें, बुखारी वगैरह सब में मौजूद है, इतना फेमस, इतना मशहूर है ये सूरह का ये टुकड़ा, इतना मशहूर है। या रसूल अल्लाह हमें अल्फाज़े दरूद सिखाइए, अल्फाज़े दरूद अता कीजिए। जरा इससे एक जहन क्या नहीं मिल रहा आपको कि आज आप नबी को भी समझने के लिए आप अपनी डिक्शनरी को तलाश रहे। हमारे हजरत कहते नहीं, नबी को समझना हो तो खुदा से समझिए, और खुदा को समझना हो तो नबी से समझिए। और यही किया सहाबा ने, कामयाब हो गए। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, उनसे अल्लाह राजी और वो अल्लाह से राजी। चुनांचे सहाबा किराम ने जब अर्ज किया कि आका हमें अल्फाज़े दरूद अता कीजिए, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा, वो तो एकदम डिक्लेयर है, कुरान में साफ कह रहा है, साफ है, अल्लाह ताला दरूद भेजो नबी पर। अब इसमें क्या समझाना है? क्लियर बात है ना? अच्छा, एक और बात देखिए, एक और बात, आपको कहा गया अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, तो आप क्या नियत करते हैं? नवैतु अन उसल्ली, नियत की मैंने कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, क्योंकि कहा ऐसे ही गया था ना अल्लाह ने, आप पढ़ो नमाज, तो आप कह रहे हैं कि ए अल्लाह मैं 2 रकात नमाज पढ़ने की नियत कर रहा हूं, यानी मैं कर रहा हूं। तो 2 बात मालूम होगी उस आयत में, यही नुक्ता आज की इस गुफ्तगू में होगी। क्या आप जरा बताइए, अल्फाज़े दुरूद पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब अल्फाज़े दुरूद का मुतालबा हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, क़ूलू, ए सहाबे किराम की जमात कहो, जी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे अच्छे से अच्छे मुरीद हो तो उछल जाए, आयत में तो है नबी पे दरूद भेजना, ये आले इब्राहिम नबी, आले मोहम्मद, आले इब्राहिम, ये कहां से, ये अपने मन से बोल रहे हैं हजरत कहते। ऐसा कितना भी अच्छा मुरीद हो तो यही कहेगा, लेकिन सारा आयत कुछ भी कहे, मतलब मुस्तफा जो कहेंगे वही हकीकत है। सुभान अल्लाह। जो भी आयत कहे, आयत कह रही है नबी पर दरूद भेजो, आयत कह रही है नबी ही पर दरूद भेजो, लेकिन अल्फाज़े दरूद कह रहा है, ए लोगों सुनो, नबी पर भी, आले नबी पर भी, इब्राहिम पर भी, आले इब्राहिम पर भी कमाल है एतराज आपको कुछ कर सकते, आप एतराज नहीं कर सकते। यही है हकीकत कि मुस्तफा जाने रहमत पर कुरान उतरा है, इसलिए कुरान डिक्शनरी से नहीं, ज़बान मुस्तफा बताएगी कुरान में क्या है, वो जाहिर कुरान है, कुरान की हकीकत क्या है वो मुस्तफा
मुस्तफा जान रहमत और साहिब कुरान उसकी तायीन करेंगे। इसीलिए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी बारगाह रिसालत में एक बार आ करके हुरूफ मुक़त्तआत जो 29 मकामात पर है कुरान में, अलिफ लाम मीम, अल्लाह पाक के नबी ने कहा मैंने समझ लिया, जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा वमा मा फहिमत या रसूल अल्लाह, लेकिन मैं तो नहीं समझा या रसूल अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लाने वाले हो, समझाने वाला रब है, समझने वाले साहिब कुरान मोहम्मद अरबी उसका हबीब है, तुम लाने वाले हो, जाओ तुमने दे दिया, समझाने वाले ने समझा दिया, मैंने समझ लिया है, समझाने वाले ने समझा दिया है, मैंने समझ लिया है। आप समझे, हजारों जिब्राइल उनसे हुए थे करते मंदिर में, न जाने किस कदर ऊंचा है तासाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आज जो इस खास टॉपिक पे आप लोगों ने ये जो नशिस्त रखी, काबिल मुबारकबाद है अल्हम्दुलिल्लाह कि आखिरी रमजान में इतना अजीम पैमाना और सीने में साहिब कुरान और कुरान की इतनी अजीम अजमत लेकर जा रहे हैं। कुरान को मत समझिए, कुरान में समझिए, और कुरान में समझोगे तो दरे रसूल नजर आएगा, साहिब कुरान नजर आएंगे। और यही पैमाना साहबे किराम का था, कोई एतराज नहीं। नबी ने कह दिया इसका मतलब ये है तो ये है, इसका मतलब ये है तो ये है। जब खुदा को बगैर समझे, नबी को देखकर समझे, क्या बात है। खुदा को तो खुदा की बोली को वो कैसे खुदा के रसूल को छोड़ करके समझेंगे। लिहाजा आज की इस छोटी सी नशिस्त में जो बातें कुरान और साहिब कुरान के हवाले से हुई है, उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ी बातें होंगी। दुआ है अल्लाह ताला आप पे शाद रखे, कुरान और साहिब कुरान से ताल्लुक मुस्तहकम फरमाए, एक एक फर्द को रमजानुल मुहतरम की सआदत बरकत रहमत बिलखुसूस जहन्नम से आजादी के अशरे में जहन्नम से आजादी के परवाना नसीब फरमाए, घरवार में औलाद में बरकतें अता फरमाए, हमारी असलों को बख्श दे और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।